न जाने सबसे पहले ये कहा किसने, कहा किससे, वो आशिक कौन था आखिर, चली रस्म वफा जिससे किया था पार, पहली बार किस पागल ने ये दरिया की जिसमें आग बहती है कि जिसमें मौत रहती है। देयर आर नो प्रीटेक्स्ट टू इट, देयर आर नो प्री नोशंस टू इट कि अरे ये इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है तो वो ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है एक्चुअली। इफ यू रियली सी पीपल अराउंड यू, to ask about the stereotypes. Yes. yeah, there are stereotypes, Yes. right? koimoi.com. So my next question is for you, Prateek. You come out of a very strong character for the Hindi audience from Scam. It has a very high recall value at this moment. Convincing people कि मैं ये भी कर सकता हूँ, because blame our ignorance that we have not seen all of your Gujarati content. So हमारे लिए the recall goes to Harshad Mehta. How difficult is it to convince people कि मैं ये भी कर सकता हूँ, I can do romance, I can do many things at the same time? I feel if as an actor I am convinced myself that I want to explore different characters and I don't want to put myself in a cage, if I do that, the rest is easy, because audience का ऐसा है that whatever that I have seen in whatever little experience on stage also, that they are constantly looking at something new Yes. which can surprise them. Yes. And actors are supposed to do that. So I think this will work with the audience, because one, as you said, that largely Hindi audience has seen me in one particular character Yes. till now. So for them this will be a good surprise. It will be, it definitely will be. Talking of perception, it brings me to Ranveer. You have a following from the very beginning for being one of the most handsome chefs of our generation. Coming to acting, tell me, how did it happen? And the same, is it difficult to convince that you can act as well? देखिए डिफ़िकल्टी जो है वो तो फिर एक्सट्रिंसिक होगी ना, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कि आउटर इकोसिस्टम कैसा है। मेरे लिए स्वाभाविक था, यू नो, मैं कल वही बात कर रहा था, मेरे लिए इट फेल्ट नेचुरल, आई फेल्ट कंफर्टेबल, आई फेल्ट आई वाज एट द राइट प्लेस एंड आई वाज इन द सेट, आई फेल्ट आई डिडंट फील कि और वो बहुत, मैं कल एग्जांपल दे रहा था कि मैं स्ट्रीट्स में खाना बनाता था पहले, जो मेरे उस्ताद थे मुनीर उस्ताद, तो उन वो तखत पे ऐसे हमको तखत पे बैठ के और प्याज काटने की आदत थी। हमने स्टील के टेबल नहीं देखे। उसके बाद माँ बाप ने बोला चलो ठीक है यही करना है तो पढ़ लो, एंड देन दे पुट मी टू अ culinary कॉलेज वेयर सडनली नाउ इट वाज ऑल स्टील टेबल्स, फैंसी बड़े बड़े नाइफ्स, ये वो, सर पे टोपी, सफ़ेद कपड़े, एंड आई एक बार मुझे लगा कि नहीं होगा, बट द मोमेंट जब मैं खड़ा हुआ वहाँ पे और मैंने पहली बार नहीं पकड़ा, मुझे समझ में आ गया था कि भाई ठीक, यू आर एट द राइट प्लेस, and I felt the same way when I was shooting. You know, it brought me back to that space. So it wasn't difficult for me. Perception wise, you know, अगर ये सोचें कि भाई ये बहुत मुश्किल होगा या लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, वो हमारे बस में ही नहीं है। हाँ. You know, हमारे बस में जो है वो तो ये है कि भाई जो करो अच्छे से करो, कन्विक्शन और बिलीफ के साथ करो, और वो कन्विक्शन और बिलीफ जो है वो वक्त के साथ आ जाता है। That's true. But how do you guys build that chemistry? Because this is a very rare trajectory. The casting is very unique. How do you build that chemistry between you two? I feel largely it works on the energies. Okay. And I am a firm believer of energies, that if two energies are resonating, you can create a lot of things. And it's all about emotions that we were supposed to portray. So that worked, because we've done something earlier also where we met and we've done one particular video together. So we knew each other, and there was that comfort, that natural comfort with each other as friends. So that worked. For you? नो आई थिंक क्या होता है ना कि मेरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़िंदगी का है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो यू नो मैं करता जाता हूँ और भूलता जाता हूँ, तो समटाइम्स जस्ट बीइंग इन दैट मोमेंट रियली हेल्प्स। तो मैं तो लोगों को लेकर एक्ट कर रहा हूँ, आई वाज जस्ट रिएक्टिंग ओके इन दैट मोमेंट टू हिज इमोशंस दैट आई सॉ ऑन हिज फेस। तो मेरी तो जर्नी थी वही थी, तो इनके चेहरे पे जो दिख रहा था मैं रिएक्ट कर रहा था उसको अपने तरीके से, अगर मैं रिएक्ट करूँगा, और वो करता जा रहा था और भूलता जा रहा था। तो वो जो मेरा प्रोसेस था वो ये था, यू नो, आई थिंक ही सॉर्ट ऑफ हैंड हेल्ड मी फेयरली वेल इन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज, एंड उसके बाद फिर आप अपना एक वजूद पकड़ लेते हैं, अपने कैरेक्टर का वजूद पकड़ लेते हैं अपना, तो खैर क्या। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड फॉर मी, यू नो, जस्ट हैविंग अ शॉर्ट टर्म मेमोरी रियली हेल्प। वो बैगेज सब वो सुबह नाश्ते में क्या खाया वो याद नहीं रखना चाहिए, हाँ, बस उसके बाद ज़िंदगी शुरू होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या है मेरा बैगेज, वो सब ईजी हो जाता है।
with him it really helped. You know, if he's looking at you and he's smiling and you've suddenly fed him something, you're supposed to react, right? Yes. It's all about reaction. So yeah, I mean, Yeah. It is, वो it is. बाकी फिर वो energy जैसे ये बोल रहे हैं कि see the way he's explaining, nobody can tell that he is not an actor. Exactly. He is an actor. Yes. Yeah. He is an actor. But that brings me to the representation. नहीं क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है। मैं हम लोग मतलब मैं अंडर 16 खेलता था, हमारा कोच बोलता था बेटा पिछली बॉल पे क्या हुआ भूल जाओ। हाँ। अगर तुम्हें ये ध्यान रहेगा कि मेरा निक होते होते बच गया या मैं आई सॉर्ट ऑफ रीच फॉर इट आउटसाइड, तो अगली बॉल पे आउट हो जाओगे। You know, That's I think that's I think थिएटर में यही सिखाते हैं हाँ. कि एक अगर फंबल हुआ है सो दैट कांट रूइन द होल प्ले, आगे बढ़ना है और नेक्स्ट मोमेंट को वापस जिंदा करना है। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। That's true.